Hello friends, Jai Hind. Welcome back to our new lesson, that is the hack driver. This is the 8th lesson from your textbook, that is Footprints Without Feet, and a very interesting and a very clever lesson which is written by Harry Sinclair. Now you can see that in this lesson the writer has told us that how it is important to deal with certain kind of people. Here the story goes around to find a witness, that is Oliver Lutkins, and what are the different obstacles the writer faces in meeting Oliver Lutkins, and how he is guided by the hack driver. The whole story goes around like this. First of all, let's see about the author. The author, Harry Sinclair, who was an American writer, short story writer, and novelist. He also won a Nobel Prize for Literature in the year 1930. He is skilled in developing and explaining his characters with humor and wit. This lesson is also not an exception to this quality. We learn a lot about his writing skill when we learn the lesson. When we talk about the title, The Hack Driver, the title is very appropriate, because at the end of the story you will come to know that the whole story, the whole process is manipulated by the hack driver. Okay, let's see what is there in the lesson. The hack driver. The introduction of the story goes like this. A young lawyer comes to a village to serve summons to Oliver Lutkins. Summons means it is an official order which is given to some person or organization as a warning, or it is a call to be present for certain case. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? These are the questions whose answers we need to find when we learn the lesson. We need to read and find out certain questions and the answers to these as well. Why is the lawyer sent to New Million? What does he first think about the police? ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है हमको. Who befriends him? Where does he take him? What does he say about Lutkins? ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमको इस पार्ट में से ढूंढ के निकालना है. Okay, let's see the lesson. The hack driver. Hack, मतलब it is a kind of carriage pulled by horses, or to some extent it is pulled by mules as well. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. So he graduated with honors, means he became a graduate. He became a junior assistant clerk. Now the writer, the narrator, you must say, the narrator tells a story in first person. So the narrator is a junior assistant clerk. This is his post in a magnificent law firm. So he became graduate in law, matlab advocate. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons. Initially, when you start a new job, you are asked to do some basic duties. So actually, the writer or the narrator was expecting that he should be given the responsibility of preparing legal briefs. But instead of that, he was given the job of serving summons.
सर्विंग समन्स मतलब कोर्ट जो भी ऑर्डर निकालता है कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना पर्सन को कल विटनेस बोल के हाजिर रहना, जैसे केस में वगैरह होता है ना, कोर्ट में ऐसे पेशी होती है, फिर केस चलता है मिलॉर्ड वगैरह वगैरह, फिर इनको गवाह देने के लिए, गवाही देने के लिए उनको हाजिर किया जाए। तो ये जो गवाह होते हैं ना उनको बुलाना पड़ता है और उसके लिए कोर्ट सम्मन्स निकालता है। सम्मन्स का मतलब कॉल होता है, ओके, सम्मन निकालता है कि ऐसे ऐसे पर्सन ने इस दिन इस टाइम को कोर्ट में हाजिर रहना है क्योंकि उनको गवाही देना है। तो वो उस आदमी को ले जाके देना पड़ता है, एडवोकेट को। तो वो एडवोकेट क्या करता है, वो सम्मन लेता है और उस आदमी को पहुंचाता है, कोर्ट ने तुमको बुलाया है। और इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। वैसा ही प्रोसेस चला और ये समन्स देने का काम नैरेटर पे आ गया था, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। और ये काम कैसा था, इट इज लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, मतलब आपको सर्च करना पड़ता है वो आदमी कहाँ रहता है। एंड यू नो, जिसको कोर्ट सम्मन दे रहा है वो कोई महात्मा पंडित विद्वान ज्ञानी तो नहीं रहता। कोर्ट जिनको बुलाता है उसमें से 90% लोग क्रिमिनल्स होते हैं और क्रिमिनल्स को मिलना, अब उसको ढूंढना पड़ता है। तो इट इज अ वर्क लाइक अ डिटेक्टिव ही सेज, एंड दैट इज ऑल चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोवी कॉर्नर्स। डर्टी एंड शैडोवी, शैडोवी मतलब डार्क कॉर्नर्स। अभी शैडोवी के दो मीनिंग होते हैं, एक सच में वहां पे अंधेरा रहता है और दूसरा शैडोवी मतलब जहां पे क्राइम्स ज्यादा होते हैं, ओके। शैडोवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, टू सर्च हिज विक्टिम्स। विक्टिम मतलब जिनको वो सर्व करने वाले, समवन, क्योंकि सर्विंग समवन्स टू सम पर्सन इज नॉट एन इजी जॉब। उसको वहां पे आना पड़ता है कोर्ट में, नॉट एन ऑनर कि मुझे कोर्ट ने सम्मन दिया। ऑनर तो नहीं है, तो जो भी जिसको भी सम्मन मिलता है वो पर्सन परेशान रहता है। दैट्स व्हाई ही कॉल्स देम विक्टिम। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। यू कैन नॉट गिव एनी गारंटी ऑफ सच पीपल। तो ऐसे जो लोग हैं, सम ऑफ द लार्जर, जो थोड़े से बड़े होते हैं, एंड मोर कॉन्फिडेंट, उनको ज्यादा खुद में यकीन रहता है, वंस इवन बीट मी अप। अच्छा, तो हमारे लिए सम्मन लेके आया है क्या, ऐसा करके उनको मारते भी थे, उनको मार भी खाया है लोगों से। बीट मी अप। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, सो आई डिडंट लाइक दिस जॉब। तो पहली चीज क्या पसंद नहीं थी, दिस अनप्लेजेंट वर्क, सम्मन देना, एंड सेकेंड, and the side of city life it revealed to me. It also revealed to him a dark side of city life. सिटी में क्रिमिनल्स भी होते हैं, तो वो उनको नहीं समझ में आया था, पसंद नहीं आया था। I even considered fleeing to my hometown. Fleeing मतलब run away. उनको कभी कभी लगा, he thought that it is better to run away from this job. काम छोड़ के भाग जाना यहां से, ऐसे लगा। And the reason is some criminals beat him up. It revealed to darker aspect of his life, and to search people in different areas was very difficult and tough job. He didn't like this at all. Where I could have been a real lawyer right away. तो जहाँ पे सच में मेन लॉयर का काम करो, ऐसे काम नहीं करना था, without going through this unpleasant training period. So he wanted to avoid such job. He wanted to run away from that place. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million. So he became happy. He rejoiced. One day when they sent me out 40 miles, थोड़ा सा दूर था, और दूर था इसलिए शायद खुश होगा वो, in the country to a town called New Millions. टाउन का नाम था, to serve summons to a man called Oliver Lutkins. Name of the place, New Million. Name of the person to whom summons has to be served, Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case.
and he had ignored all our letters. तो सारे लेटर्स इग्नोर कर दिए थे उसने कोई भी लेटर का आंसर नहीं दिया था और कभी भी वो कोर्ट में नहीं आया था, तो उसको पकड़ के वो सम्मन्स उसको देने थे. When I got to New Millions, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. The first disappointing thing that happened to him was the appearance of the New Million. वो गांव जो था, a town, whatever it was, a place, that place was very unpleasant. What was the expectation? Expectation ऐसा था, sweet and simple country village, मतलब खेड़े गांव, sweet and simple, साफ सुथरा छोटा सा गांव, were severely disappointed. Its street were rivers of mud. गांव की रियलिटी ऐसी है. पिक्चर में जो गांव दिखता है ना, छोटा सा गांव, छोटे से घर, रास्ते, पेड़, जानवर वगैरह वगैरह, लेकिन आज गांव में ऐसा नहीं है. रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट, जैसे न्यू मिलियंस की थी. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. तो बीच में मड था, गंदगी थी, कीचड़ था, and on both the sides there were shops. छोटे छोटे शॉप्स थे, लकड़ी के बनाए हुए, पेंटेड थे और कुछ को पेंट नहीं था. जिनको पेंट था वो था सोर ब्राउन, डल कलर था, और कुछ बिल्कुल कलर भी नहीं था, उनको वैसे ही लगाए हुए थे. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. तो इन सब में एक ही चीज अच्छी लगी थी, and that good thing was the delivery man, जो उसको ले जाने वाला था. At the station, he was about 40, 41 साल की उम्र थी. See the description of this delivery man. Red-faced, cheerful, and thick about the middle. Thick about the middle इसका मतलब होता है थोड़ा सा मोटा था. ये मिडल के पार्ट में मोटा था. His working clothes were dirty and well worn. गंदे कपड़े, well worn मतलब बहुत ज्यादा घिसे हुए थे. And he had a friendly manner. अभी इस पर्सन के बारे में इतना कुछ बोला हुआ है तो जरूर ये पर्सन इंपॉर्टेंट होगा, कुछ तो कहानी में उसका रोल होगा, इसलिए बताया जा रहा है. टाइम इज टेकन फॉर दिस. एंड हैड फ्रेंडली मैनर. यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल्स. पर उनको देख के ऐसा लगता है ये शायद लोगों को पसंद करता है, ऐसा है. आई वॉन्ट, आई टोल्ड हिम, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलिवर लुटकिंस. तो मिलते ही उसने बोला नैरेटर ने कि मुझे ऑलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को मिलना है. ही टोल्ड. लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो. वो बोलता है लुटकिंस, अभी 1 घंटे पहले मैंने इधर ही देखा उसको. He said, हार्ड फेलो टू कैच दो. मुश्किल है, उस आदमी को पकड़ना मुश्किल है. ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, मतलब कभी ये कभी वो करता रहता हो. ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ द फ्रिट्स शॉप. सो शायद ही गोइंग टू स्टार्ट अ पोकर गेम. पोकर गेम इट इज अ कार्ड गेम. वो गेम शायद वो शुरू करने वाला है एट द बैक ऑफ फ्रिज शॉप. आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस. बताता हूं तुमको, पर कुछ जल्दी है क्या? मतलब लुटकिंस तुमको चाहिए तो कुछ गड़बड़ है, कुछ जल्दी है? He asks. Yes, the narrator tells. I want to catch the afternoon train back to the city. वापस जाना है मुझे और दोपहर की ट्रेन है. I was very important and a secret about it. So he said,
ज़्यादा नहीं बताया कि क्या काम है, कैसा है। वो बोला थोड़ा सा सीक्रेट है और मुझे जाना ज़रूरी है। ही टोल्ड दिस, आई टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक। बोलते मेरे पास एक हैक है। हैक मतलब मेरे पास कैरेज है। यू कैन सी द हैक देयर। आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। पता है कहाँ कहाँ पे वो हो सकता है, मुझे आइडिया है, तो चलो चलते हैं। ही प्रपोज्ड। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. हाँ, उसके प्यार से, उसके अफेक्शन से वो खुश हो गया, अरे कितना अच्छा आदमी है। He was warmed by that. I knew, of course, that he wanted the business. उसको तो हैक घुमाना था, business, but his kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. तो बोले उसको काइंडनेस दिखा रहा था, तो रियल था, मतलब आदमी अच्छा दिख रहा था, सच्चा दिख रहा था। और वो सोचा कि चलो पैसा तो मुझे देना ही है, किसी ने किसी को देना है, लेकिन मेरा पैसा इस आदमी को, अच्छे आदमी के पास जाएगा तो अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। He thought. I managed to bargain down to $2 an hour. बोला 1 घंटे की $2 में दूंगा। And then he brought his house nearby a sort of large black box of wheels. तो $2 पर आवर ये फिक्स हो गया। और फिर ऐसा फिक्स होने के बाद उसने एक बॉक्स विथ व्हील्स लाया, मतलब ही कुड कॉल इट कैरेज, हैक। लेकिन राइटर का डिस्क्रिप्शन देख के ऐसा लगता है कि इट वॉज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट। एक बॉक्स विथ व्हील्स, ऐसा वो बोलता है। He remarked, "Well, young man, here is the carriage." And his wide smile made me into an old friend. और उसमें स्माइल दिया तो ऐसे लगे तो बहुत पुराना फ्रेंड है अपना, ऐसे फीलिंग राइटर के मन में आई। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. फिर वो सोचता है कि ये आदमी तो इतना फ्रेंडली है और गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, ऐसा भी ख्याल उसके मन में आया। अभी जैसे उसी का काम बन गया था, उसी की ड्यूटी बन गई थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे ये काम करना है, और वो एकदम वार्मली ये सब काम करने के लिए तैयार हो गया था। He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins." वो कहता है मैं तुम्हारे काम में इंटरफियर नहीं करना चाहता, पर शायद तुमको लुटकिन से कुछ पैसे लेने होंगे, शायद, और शायद तुम उसके लिए आए हो, ऐसा है क्या? He asks. He never pays anybody a cent. मैं बताऊं तुमको, पैसे देता नहीं हाँ किसी को, ऐसा भी वो बोलता है। He still owes me 50 cents on a poker game. बोलता है मुझे अभी तक उसने पैसे देना बाकी है, 50 सेंट अभी भी उधार है मेरी उस पे, उसने दिया नहीं है मुझे, तो आने बाकी है मेरे। He says, he still owes me 50 cents on a poker game. हमने गेम खेला था, पत्ते खेले थे, तब उसने मुझे देना है, दिया नहीं अभी तक। I was fool enough to play with him. He says, पागल था मैं, उसके साथ खेला, मालूम था पैसे नहीं आने थे। He is not really bad, but it is hard to make him part his money. बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसे पैसे निकालना ना और टेढ़ी कीर है, उसको पैसे उसके हाथ से छूटते नहीं है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you.
अगर समझो तुम मुझसे पैसे कलेक्ट करने जा रहे हो, इस तरह के कपड़े पहन के, जिस तरह के फैंसी कपड़े तुमने पहने, ये कपड़े पहन के अगर तुम मुझसे पैसे लेने जाओगे ना, तो he says that he will be suspicious. उसको डाउट आएगा, उसको डाउट आएगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, कोई मिलेगा नहीं. इफ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम. मैं जाता हूँ फ्रिज के शॉप में, वहां पर, और पूछता हूं कि वो है क्या. मतलब तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो भाग जाएगा, तुम मत जाओ, मैं जाता हूं, मैं ही पूछता हूं. एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी. और तुम पीछे रहो, उसके नजरें मत आओ, दिखना नहीं चाहिए, तुम पीछे रहो. ही सेज आई लव्ड हिम फॉर दिस. बोले क्या बढ़िया आदमी, कितना मदद कर रहा है. उसको लगा, by myself I might never have found Lutkin. With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. तो मैं तो उसको कभी ढूंढ नहीं पाता था, लेकिन अगर ये मेरी मदद करेगा, ये मुझे हेल्प करेगा, तो मैं पक्का उसको पकड़ पाऊंगा, ऐसा उसको लगा था. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve summons to Lutkins. फिर अभी इतना कॉन्फिडेंस उसने जीत लिया था उस हैक ड्राइवर ने, तो उसने बोला कि उसने आने का पर्पस बोल दिया. एक्चुअली ना मैं उसको इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि मैं लुटकिंस को समन्स देना चाहता हूं. कोर्ट में उसकी पेशी है, कोर्ट ने उसको बुलाया है, उसको समन्स दिया है, मुझे उसको समन्स देना है, ये काम है. मतलब ये जो काम है उसने उस हैक ड्राइवर को बताया, ये देखते हुए कि ये तो बंदा बहुत दोस्ताना है, और इतने फ्रेंडली होने की वजह से सब बता दिया. दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस. और ये बताया कि ही रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस, वो विटनेस बनने को तैयार ही नहीं है, आने को तैयार ही नहीं है. When his information would have quickly settled our case. Actually वो अगर कोर्ट में आएगा, वो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो देगा, तो हमारा केस ऐसे सॉल्व हो जाएगा. ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लेकिन वो आ ही नहीं रहा है बंदा, ऐसा भी उसने बताया. द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली. बोला अच्छा, ओके, हो ऐसा. ही लिसन अर्नेस्टली. एट द एंड he hit me on the shoulder. और आखिर में ऐसा शोल्डर पे थपथपाया and laughed. Well, we will give brother Lutkins a little surprise. एक काम करते हैं, तुम्हारे इस लुटकिंस को ना एक सरप्राइज देंगे, झटका देंगे उसको, ऐसा उसने बोला. Let's start, driver. ऐसा वो कहता है. In this way, these two go in the search of Oliver Lutkins. आगे क्या होता है, क्या लुटकिंस मिलता है, कहां मिलता है, कौन होता है, क्या वो विटनेस बनता है, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में, मतलब अगले वीडियो में. ओके, सी यू सून.